Today we are going to discuss the topic of Mann-Whitney-Wilcoxon test. The book which we are following is Statistics for Business and Economics, written by Anderson and Sweeney, chapter number 19. In chapter number 10, we introduce a procedure for conducting a hypothesis test about the difference between the means of two populations using two independent samples, one from the population 1 and one from the population 2. This parametric test required quantitative data and the assumption that both populations had a normal distribution. In the case where the population standard deviation sigma 1 and sigma 2 were unknown, the sample standard deviations S1 and S2 provided estimates of sigma 1 and sigma 2, and the t distribution were used to make an inference about the difference between the means of the two populations. चैप्टर नंबर 10 में क्या था, हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मींस देखा था, और उसमें दो हम लोगों ने एक केस ये देखा था जब हमारे पास जो दोनों सैंपल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि N1 और N2 अलग होते हैं, ठीक है। तो उनमें हमारे पास क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा 1 होता है और सिग्मा 2 होता है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे S1 और S2 कंप्यूट कर लेते थे और उनके ऊपर टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे, ठीक है। तो ये जो मेथड था ये आपका पैरामीट्रिक मेथड था। अब in this section we present a non-parametric test for the difference between two populations based on the two independent samples. Advantages of this non-parametric procedures are that it can be used with either ordinal data or quantitative data, and it does not require the assumption that the populations have a normal distribution. Versions of the test were developed jointly by Mann and Whitney and also by Wilcoxon. As a result, the result test has been referred to as the Mann-Whitney test and Wilcoxon rank sum test. The tests are equivalent and both versions provided the same conclusion. In this section, we will refer to this non-parametric test as the Mann-Whitney-Wilcoxon test. तो जो आपका टी टेस्ट का होता था उसमें हमारे पास अजम्पशन ये होती थी कि आपका जो डाटा होगा वो क्वांटिटेटिव होगा और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट था इंडिपेंडेंट सैंपल का अल्टरनेटिव, उसमें डाटा या तो आपका ऑर्डिनल भी चल सकता है या आपका डाटा क्वांटिटेटिव भी चल सकता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पशन जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। इस टेस्ट को बेसिकली जो डेवलप करने वाले थे वो दो स्टैटिस्टिशियंस थे, एक का नाम मान था, एक का नाम विटनी था और एक का नाम विल्कॉक्सन था। तो इन तीनों ने ये डेवलप किया और इन तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे थे, इसी वजह से इस टेस्ट का नाम जो है वो मान विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट रखा गया। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट का जो हमारा तरीकाकार होता है वो यही होता है कि आप सबसे पहले अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। तो इसमें आप अपनी आसानी के लिए सबसे बेहतर ये रखें H0 the two populations are identical, HA the two populations are not identical, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका वही होगा जिसमें आप अल्फा रखेंगे, थर्ड स्टेप में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स रखेंगे और चौथे स्टेप में आप कैलकुलेशंस करेंगे और फिर आप डिसीजन कर देंगे, ठीक है। So we will first illustrate the Mann-Whitney-Wilcoxon test using small samples with the rank order data. This will give you an understanding of how the rank sum statistics is computed and how it is used to determine whether to reject the null hypothesis that the two populations are identical. Later in this section, we will introduce a large sample approximation based on the normal distribution that will simplify the calculations required by the Mann-Whitney-Wilcoxon test. लेटेस्ट कंसीडर, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल सैंपल्स वाली बात डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ, फिर हम लोग लार्ज सैंपल वाले केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आप किस तरह काम करके अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्मॉल सैंपल वाला केस। लेट अस कंसीडर द ऑन द जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग्स फॉर एम्प्लॉइज एट द शो टाइम सिनेमा at 20 screen multiplex movie theater. During an employee performance review, the theater's manager rated all 35 employees from best rating to worst rating. In the
the theater's annual report, knowing that the part-time employees were primarily college and high school students. The district manager asked if there was evidence of a significant difference in the performance for college students compared to high school students. In terms of the population of college students and the population of high school students who could be considered for employment at the theater, the hypothesis was stated as follows. तो दो हमारे पास पॉपुलेशन है, एक कॉलेज स्टूडेंट्स है, एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स है, और हम देना टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और हमने उनको रैंक करना है बेसिकली क्या सब 1 से लेकर 35 तक इनमें से सबसे अच्छा कौन सा। और हम देखना ये चाह रहे हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस के हवाले से इन दोनों में से कौन सा जो है वो बेहतरीन है, ठीक है। या क्या दोनों जो है वो परफॉर्मेंस के हवाले से एक जैसे हैं। तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो ये होगा, कॉलेज एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। कॉलेज और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा, कॉलेज एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। या आप अपनी आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं, एच नॉट टू पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल, एच ए टू पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल। सेकंड स्टेप आपका अल्फा होगा, दैट इज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। So we begin with by selecting a random sample of 4 college students and a random sample of 5 high school students working at Showtime Cinemas. The theater manager's overall performance rating based on all 35 employees were recorded for each of these employees at shown in table 19.8. The first college students was rated 15th in the manager's annual performance rating. The second rated third in the manager's performance and so on. अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स एकदम रैंडम सेलेक्ट किए हैं, 5 जो हैं वो हाई स्कूल के सिलेक्ट किए हैं। अब ये जो कॉलेज स्टूडेंट 1 जो यानी कि पहला बंदा उन्होंने सेलेक्ट किया ना, मैनेजर के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस की रेटिंग कौन सी थी, 15वें नंबर पे था, यानी कि वो हर बंदे को रैंक आ रहा था 1 से लेकर 35 के दरमियान, ठीक है। तो इसने जो कॉलेज स्टूडेंट था पहला जो सिलेक्ट हुआ, उसका रैंक मैनेजर के हिसाब से कौन सा था, 15 था। जो दूसरा कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ मैनेजर के हिसाब से, उसका परफॉर्मेंस रैंक कौन सा था, 3rd नंबर पे था। इसी तरह 3rd नंबर पे जो आया हुआ है उसका 23 रैंक था, 4th नंबर पे जो आया हुआ उसका 8 रैंक था। और इसी तरह हाई स्कूल का जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ पहले नंबर वाला, उसका मैनेजर के हिसाब से रैंक कौन सा था, 18 आउट ऑफ 35। दूसरा जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ उसका मैनेजर के हिसाब से रैंक कौन सा था, 20, ठीक है। तो इस तरह करके डाटा लिया। The next step in the Mann-Whitney-Wilcoxon test is to rank the combined sample from low to high. Since there is a total of 9 students, we rank the performance rating data in table 19.8 from 1 to 9. Ab the lowest value of 3 for college student 2 receives a rank of 1, and second lowest value of 8 for college student receives 4, a rank 2. The highest value of 32 for high school students 3 receives a rank of 9. अब होगा क्या, हमारे पास ये रैंक आ गया, ठीक है। हमारे पास टोटल 9 बंदे हैं, हमारे पास जो मैनेजर के रैंक आया हुआ है, रेटिंग आई हुई है। अब हम इसको मद्देनजर रखते हुए अपने इस टेबल को रैंक करेंगे। यानी कि देखें हमारे पास इस डाटा के अंदर सबसे छोटी वाली कौन सी है, मैनेजर परफॉर्मेंस रेटिंग में देखें आप, तो मैनेजर परफॉर्मेंस रेटिंग में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है 3। तो इसके सामने हमारा रैंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद रैंक हमारा कौन सा है, 8 है। तो 8 के सामने रैंक हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 8 के बाद कौन सा रैंक है, 9 है। तो 9 का रैंक कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखो, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि ये रैंक जो है ये 4 1 7 2 5 6 9 3 8 ये कैसे आए, ये उसी तरह है। यानी कि सबसे डाटा में छोटा जो वैल्यू थी वो 3 थी, तो 3 के सामने रैंक आ गया 1 आ गया। 8 जो था दूसरा नंबर पर था तो 2 आ गया। 9 जो था वो तीसरा नंबर पर था तो 3 आ गया। फिर 9 के बाद देखिए वैल्यू बड़ी कौन सी है, 15 है, तो 15 के सामने 4 आ गया। तो आपने इस तरह कर ली। अब आपने दोनों को रैंक सम्स कर लेना है। कॉलेज स्टूडेंट्स वाले को रैंक को सम किया तो वो 14 आ गया, हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स के रैंक किया तो वो सम किया तो वो 31 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया, हमने यानी कि रैंक कर दिया। पहला जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ वो हाई स्कूल का था, दूसरा स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ वो ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वी सम द रैंक्स फॉर ईच सैंपल एज शोन इन टेबल 19.9। द मान विटनी Wilcoxon procedure may use the sum of ranks for either sample. However, in our application of Mann-Whitney-Wilcoxon test, we'll follow the common practice of using the first sample, which is the sample of 4 college students. The sum of the ranks of the first sample will be the test statistics W for the Mann-Whitney test. तो हमारे पास जो यहाँ पे देखिए पहला जो सैंपल था उसका सम जो था वो 14 था, तो हम लोग यूजुअली यही करते हैं कि जो पहला सैंपल होता है उसी को ही कंसीडर करते हैं। तो देखिए हम लोग ये करते क्यों हैं, ये सम हमें हेल्प किस तरह करता है दो हाइपोथेसिस के दरमियान सेलेक्ट करने का। लेट अस कंसीडर व्हाई द सम of the ranks will help us select between the two hypotheses H naught. The two populations are identical. The HA, two populations are not identical. Letting C denote the college student and H denote high school student. Suppose the ranks of the 9 students had the following order with 4 college students having the 4 lowest ranks. तो ये देखें आपके पास ये आगे, सो 4 आगे, 5 अगले 5 जो है वो आपके हाई आगे। तो होना ये चाहिए था। अब ये आपका रैंक है बेसिकली, लेकिन आप जब अपने डाटा के अंदर देखेंगे तो उसका रैंक जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपका जो यानी कि दोनों पॉपुलेशन है वो आइडेंटिकल नहीं है। या आप उसको पहले 5 हाई स्कूल रख लें या पहले 4 कॉलेज स्टूडेंट्स रखें, तो दोनों में आप देखेंगे कि आपका जो रैंक है यानी कि टेबल के अंदर देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, देखे ना, जैसे आपने यहाँ पे किया लोअर रैंक में, जब आप ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो आपके पास 10 आएगा। लेकिन जब आप उसको उल्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 7 + 8 + 9 करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। ठीक है, so thus we see that the sum of the ranks for the college students must be between 10 and 30. Values of W near 10 implies that the college students have lower ranks than the high school students, whereas value of W near 30 implies that the college students have higher ranks than the high school students. तो हम लोग क्या करते हैं, इनके assumption के ऊपर एक काम करते हैं। दोनों assumption से या तो 10 आ सकता है या 30 आ सकता था, तो हमने क्या किया, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज के ऐड किया, 10 + 30 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 20 आ गया। Making the assumption that the two populations are identical, we use a computer program to compute all possible orderings for 9 orders. तो हम लोग जब 14 हमारा एक्चुअल जो था वो सम था, हमारी जो वैल्यूज आ रही थी वो 10 और 30 के दरमियान आ रही थी, तो हमने क्या किया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब इनके निकाली तो हमने उसको 14 से लेस वाली के कर दी, तो 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया और 14 आ गया। ठीक है, आपने जब इनकी प्रोबेबिलिटीज
टेबल से देखी तो आपके पास ये वैल्यूज आई हुई थी 0.0079, 0.0079, 0.159, 0.03238, 0.0397 और ये आपके पास आंसर आ गया 0.0952। 952 को आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0.1904 आ गया। और आपका डिसीजन रूल वही था कि अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो अल्फा से लेस होगी तो आपका रिजेक्ट है एच नॉट, अदरवाइज आपका एक्सेप्ट है एच नॉट। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटीज बेसिकली कंप्यूट हुई है ना, वो आपके जो बुक है उसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने डायरेक्ट जो है ना मान विटनी की जगह अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो उसमें होगा। हम लोग इस कोर्स के अंदर, ये मैंने वैसे आपको समझाया स्मॉल सैंपल के साथ आप कैसे काम करते हैं। हम लोग इस कोर्स के अंदर जो है वो कंसीडर यही करेंगे, अपना जो लार्ज सैंपल केस है उन्हीं को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उनमें देखें आपके पास, जब आपके पास लार्ज सैंपल केस होता है, यानी कि लार्ज सैंपल केस हो रहा था कि जब आपके N1 और N2 जो है वो दोनों 10 से ज्यादा हो जाएं, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं, अब यहाँ पे ब्रांच 1 है और ब्रांच 2 है, यहाँ पे दोनों एन जो है वो 10 से ज्यादा है। तो ये आपके पास अकाउंट 1 में बैलेंस था, अकाउंट ब्रांच 2 में ये अकाउंट आ रहे थे, उनका बैलेंस ये था। अब आपने क्या किया, इनको आपने रैंक कर लिया। रैंक करने का वही तरीका है, जो आपके डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी, आगे फिर उस हिसाब से चलती जाएंगी, ठीक है। ये आपने उनको रैंक कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये आपने उनको रैंक कर लिया, सम ऑफ रैंक 169 आ गया, दूसरी जगह पर सम ऑफ रैंक आपका 83 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम लोगों का जो पहला रैंक आया हुआ था उसी को ही डब्ल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका मीन किस तरह कंप्यूट होगा, म्यू ऑफ डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 n1 मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस n2 प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास n1 क्या है 12 है, n2 क्या है 10 वैल्यूज है, प्लस 1 किया आपने, म्यू आ गया 138 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने इसी तरह कंप्यूट कर ली 1/12 n1 n2 क्लोज ब्रैकेट n1 प्लस n2 प्लस 1। तो आपने कंप्यूट किया तो 15.16 आ गया। आपके पास W जो था वो क्या था, आपके पास W जो है वो 169 है। आपने यहाँ पे वैल्यूज प्लेस की 169 माइनस 138 डिवाइडेड बाई 15.1658। तो आपके पास ये Z की वैल्यू आ गई। आपने इस Z की वैल्यू को आपने एरिया टेबल के अंदर देखा और आपके पास डिसीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका मान विटनी टेस्ट होगा। यानी कि आप ये देखिए, जैसे विंटर और समर है ना, ये मैन और वुमेन है, आप इनको रैंक करेंगे पहले, ठीक है। सबको रैंक करके आपने डब्ल्यू निकाल लिया मैन वाला, रैंक का सम किया, फिर आपने म्यू निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, जेड की वैल्यू निकाली, पी वैल्यू निकाली और आपने आंसर लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप मान बिटवीन में वही, टू पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल, एच जो 1 है वो आपका टू पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल। सेकंड स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। थर्ड स्टेप आपका z इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। चौथा स्टेप आपने वैल्यूज प्लेस की। पांचवा स्टेप आपने पी वैल्यू निकाली और छठा स्टेप आपका कंक्लूजन। अगर तो आपकी पी वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फा होगी तो रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज आपकी एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारा आ जाता है क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। अब क्रुस्कल वैलिस टेस्ट जैसे हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब आप 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन के मुतालिक जो है वो अपना डिसीजंस ड्रॉ करते हैं तो तब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्रिस्कल क्रुस्कल वैलिस टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और क्रुस्कल वैलिस टेस्ट जो है वो आपका 3 या 3 से ज्यादा के पॉपुलेशन पे लग सकता है, ठीक है। और क्रुस्कल वैलिस टेस्ट का फायदा ये है कि ये तो ऑर्डिनल डाटा के साथ भी लग सकता है और क्वांटिटेटिव के डाटा के साथ भी लग सकता है, और इसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन जो है वो रिक्वायर नहीं होती।
तो उसका नॉन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका इस तरह डेवलप होता है, एच नॉट ऑल पॉपुलेशंस आर आइडेंटिकल, एच ए ऑल पॉपुलेशंस आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तीन कॉलेज के जो है परफॉर्मेंस एवलुएशन रेटिंग फॉर 20 विलियम्स एम्प्लॉय, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी। तो ये तीन की आपने करनी है बेसिकली, रैंक करना है। तो आप देखें आपके पास होगा क्या, क्रुस्कल वैल्यूज का फार्मूला जो है डेट इज 12 एन टी मल्टीप्लाई बाय एन टी प्लस वन समेशन आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन आई माइनस 3 एन टी प्लस वन। अब इसमें के क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। यहाँ पे हमारे पास तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 3 है। ठीक है, और एन आई जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल आई, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आपके पास कॉलेज ए के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऑब्जर्वेशन हमारे पास कॉलेज वन में है। कॉलेज बी में जो है वो 1 2 3 4 5 6, जो से 6 पॉपुलेशन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कॉलेज बी में है। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ऑल सैंपल, जिस तरह ये आपका 7 + 6 + 7 करेंगे तो ये आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है, और सम ऑफ रैंक फॉर एग्जाम्पल आई, जो आपका सैंपल होगा रैंक होगा कॉलेज ए के लिए, उसका सम। ठीक है, एन आई उसका सैंपल साइज। तो आप इस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपने सैंपल बना रही है। सैंपल बनाने का वही तरीका है जो आपके डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू होगी उसका रैंक 1 होगा, उससे बड़ी का रैंक 2, और आप 2 सो वन आप उसी तरह चलते रहेंगे। और अगर आप 2 पॉइंट किसी जगह पे इकट्ठे आ जाएंगे, यानी कि फर्ज करें 30-30 दोनों जगह पे आ जाता है, तो उनके सामने जो उनका रैंक वाला बन रहा होगा, आप उन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, आपके पास रैंक आ जाएगा। आपने रैंक बना ली है, सम ऑफ रैंक्स कर लिए, एक का रैंक 95 आ गया, दूसरे का रैंक 27 आ गया, तीसरे का रैंक 88 आ गया। एन वन देखिए आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है, एन टू जो है वो 6 ऑब्जर्वेशन है, एन थ्री जो है वो 7 ऑब्जर्वेशन है, और एन टी जो है वो आपने तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो 7 + 6 + 7 किया तो 20 आ गया। अब आप देखिए रैंक की बात करें तो 12 आ गया, एन टी क्या था आपका 20 था, एन टी +1 किया 21 आ गया। आर आई क्या, पहला का रैंक देखें आपके पास क्या है, 95 का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 7, प्लस 27 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, प्लस 88 डिवाइड बाय का स्क्वायर डिवाइड बाय 7, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एन टी क्या है 20 या +1 क्या, ये आपके पास आंसर आ गया 8.92 आ गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लगाएंगे, इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल जो है वो काय स्क्वायर का देखेंगे, खाए। ठीक है, और काय स्क्वायर की आपको पता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम साथ में होती हैं, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करेंगे k-1 के थ्रू। ठीक है, के बेसिकली आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है आपकी, 3 कैटेगरीज है। तो 3 - 1 करेंगे 2, अल्फा आप देखेंगे 0.025। ठीक है, क्योंकि आपका 2 टेल्ड टेस्ट है। तो आप 0.025 को जब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी। ठीक है, आपके पास 738 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन वाली वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि इसमें हम लोग अब पी वैल्यू के थ्रू जो है वो काय स्क्वायर का जो काम करना है वो मुश्किल है पी वैल्यू के थ्रू। आप लोग इसके साथ इसको क्रिटिकल रीजन के थ्रू ही कर दीजिएगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग काय स्क्वायर का क्रिटिकल रीजन निकालते थे ना, ये आपने क्रिटिकल रीजन ही बेसिकली निकाला है कि आपने अल्फा की वैल्यू और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है उसको देखा एरिया टेबल में, और जो वाली आई वो वैल्यू आ गई, वो आपकी क्रिटिकल रीजन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि 8.92 आपकी क्रिटिकल रीजन वाली वैल्यू से छोटी होगी, रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है, और इसमें क्रिटिकल वैल्यूज में हमेशा आपका 2 टेल्ड ही लगेगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स है आपके क्रिटिकल वैल्यूज में। आपने क्या किया, पहला स्टेप ऑल पॉपुलेशन मीन नल और अल्टरनेटिव आप हाइपोथेसिस आपने डेवलप की है। पहला हाइपोथेसिस आपका नल जो था वो ऑल पॉपुलेशंस आर आइडेंटिकल,
अल्टरनेटिव ऑल पॉपुलेशंस आर नॉट आइडेंटिकल। सेकंड स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाएगा। थर्ड स्टेप आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वो h इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय nt प्लस 1 समेशन ri स्क्वायर डिवाइडेड बाय ni माइनस 3 nt प्लस 1, ठीक है। आपने चौथे स्टेप में कैलकुलेशन की, जो आपके पास जितनी अब नंबर ऑफ कैटेगरीज थी उन हवालों उनसे उनको आपने रैंक कर लिया, रैंक करके आपने सम कर लिया, ठीक है, और आपने फार्मूले के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। पांचवा स्टेप का आपका वही, आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड किया, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आपकी k-1 के साथ होगी, k जितने आपके नंबर ऑफ कैटेगरीज होंगी, आपने उस तरह आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड कर लिया। क्रिटिकल रीजन फाइंड करके आपने छठे स्टेप के अंदर कंक्लूजन या डिसीजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपकी क्रिटिकल रीजन वाली वैल्यू से जो है वो कम होगी, रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगी। यानी कि जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर आपके क्रिटिकल रीजन वाले एरिया के अंदर फॉल करेगी तो रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा। तो ये आज के दो लेक्चर थे। पहला जो था वो मान विट्नी विल्कोक्सन रैंक टेस्ट था, और दूसरा जो था वो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट था। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने दो क्वेश्चन विल्कोक्सन रैंक मान विट्नी विल्कोक्सन के और दो ही क्वेश्चन आपने क्रुस्कल वैली के वैलिस के करके आप लोगों ने हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर शेयर कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, ठीक है। ये था आज आप लोगों का लेक्चर।